माई पेशेंट रूबीना। जी मैम सिनेरियो है मेरे पास। जी जी, बिल्कुल बताइए सिनेरियो। Husband blood group Rh positive, mother हम्म blood group Rh negative at 16 weeks of gestation. Previous हम्म baby with immune hydrops. Her anti-D level is more than 4 international unit per liter. Now हम्म। proceed with management. ओके। अच्छा, इसमें ये बताइए कि शी इज ग्रेविडा पैरा हाउ मेनी? Ma'am, she is Gravida 2 para 1, now at 16 weeks. So in the first pregnancy, she previous baby was hydrops. Hydrops. So her first baby was affected. Yes, ma'am. थोड़ा अनयूजुअल केस है। ओके जी, Yes, sir. प्रोसीड करें। Okay, ma'am, structure discussion करूँ? जी जी। Um, After greeting and introduction, I will confirm the information given to me. I will address her concern, set the agenda, and start taking patient information with the history taking. First, I will हम्म would like to know about the age of my patient, her last menstrual period to confirm the period of gestation, and and also I would like to know that how she conceived, whether it was spontaneous or assisted conception, how the pregnancy was confirmed, any complication during the first trimester, whether she took folic acid, and dating scan at 12th week to confirm the gestation, singleton pregnancy for period of gestation, estimated date of delivery was done or not. After हम्म this, I would like to take the detailed history of her previous pregnancy. As she has हम्म history of hair drops, I would like to know at what gestation it was diagnosed, what was the management, and also I would like to know about any sensitizing event, like any blood transfusion, any history of trauma, any history of hemorrhage. I would like to know about at what mode of delivery, about at what gestation, what was the mode of delivery, and what was the outcome. And after the delivery, whether anti-D was given to the patient, and also had a follow-up Killiar test done for the assessment of fetal-maternal hemorrhage was done or not. I would like to take the detailed history of her past medical history, any diabetes, hypertension, and any other medical comorbidities, previous history of any surgery, any drug allergies, and also her any her gynae history, including pap smear and contraception. Also, I would like to know about how was the social support at the home, how is her about her weight. I would like to know about her weight and also any history of smoking and alcohol. After हम्म this, I will proceed toward examination. First, I would like to do general physical examination for general look of my patient and also for her vitals, blood pressure, her pulse rate, temperature, respiratory rate, and then any enlargement in the thyroid and routine systemic examination. हम्म Then proceed toward investigations. Besides her baseline investigations, I would like to confirm her husband blood group with genotype and then NIPT for to confirm the blood group of baby. As my further management depends upon the baby blood group. ब्लड ग्रुप ऑफ बेबी के लिए आपने क्या बताया? Ma'am, non-invasive ओके prenatal ओके diagnostic हिप testing. ओके, ठीक है। मैम मैम बस इतना ही है। अच्छा बस। So with this scenario, how would you counsel the patient? Because if we go into the specification of the history and examination as told by you, तो Yes, थोड़ा सा इसको हम खुद फॉर्म जी। ma'am, my management depends upon the baby blood group. If the blood group of the baby is negative, then there is हम्म no need to manage this patient. It's a low हम्म risk pregnancy. I will counsel the patient that for frequent antenatal visits, and there is no need to give prophylactic antenatal as well as postnatal anti-D prophylaxis. If the Okay, this baby is blood, this is one option. This is yes, one ma'am. option and the best one. But what Yes, if you ma'am. cannot determine the blood group of the baby? Like the facility is not available or the patient is not so affordable to have this test done, non-invasive testing. So what in case you don't know the type, the blood group of the baby? Ma'am, I would like to know about the genotype of husband blood group. If Okay. husband is a homozygous, then it's 100%, it's an positive. Then I will Hmm. take it a high risk pregnancy. If Hmm. husband is heterozygous, then in 50% it could be positive and in 50% it could be negative. Hmm. Okay. So this is another ideal situation. Yes, ma'am. So if we usually we know only the blood group of the patient.
and the scenario, overall scenario, what we can determine in every setup. So as part for the ideal situations in this patient which you have just discussed, what are the other options? What if these tests cannot be carried out in your setup? The alternate Yeah. options. Ma'am, alternate option is then I will refer the patient to the fetal medicine unit for middle cerebral artery Doppler, and my Mhm. further management depends upon the peak systolic velocity of middle cerebral artery Doppler. Right now, she is at 16 Ma'am, weeks of after gestation. 20 weeks, ma'am, I will refer the patient. I'll consult the patient about all options, and then I will refer the patient after 20 weeks to fetal medicine unit for further management with the middle cerebral artery Doppler peak systolic velocity. So you said that at 16 weeks, the patient right now is having Rh antibody titer of more than 4 international units per ml. So what to do in between 16 and the 20 weeks? Because you are going to refer the patients or to go for the other testing after 20 weeks. Yes, ma'am. So you will leave her as such now. Ma'am, ideally, according to guidelines, there should be NIPT. If not available, then I will refer the patient to fetal medicine unit. If it's not हाँ, available, then then ठीक है। it can. आपने हस्बैंड के जीनोटाइप की बात कर ली, बेबी के एनआईपीटी की बात कर ली, फिर उसके अलावा ये सारी चीजें रेफरल की आपने बात कर ली, बट व्हाट आर द अदर चॉइसेस? Sorry, madam, I don't know. ओके, सो व्हाट अफेक्ट विल इट हैव अगर मोर देन 4 इंटरनेशनल यूनिट्स है पर मिलीलीटर है, तो इसमें इसका इफेक्ट क्या आप एंटिसिपेट कर रही हैं? Ma'am, it's यू it विल टेल टू द पेशेंट। देखो, पेशेंट को तो आपने मैनेजमेंट तो बात की बात आती है ना, जिसमें आपने ये yes, कहा कि मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, वो भी सारा कुछ ठीक है। दैट इज एन आइडियल सिचुएशन एंड इट शुड बी मेंशन्ड। लेकिन अगर ये इस वक्त मोर देन 4 इंटरनेशनल यूनिट्स है, एग्जैक्टली yes, हमने ma'am. क्वान्टिफाई इसको नहीं किया होगा, वरना ये हमें पता चल जाता है ये 6 है, 8 है, 10 है, कितना है। Yes, तो madam. more than 4 इंटरनेशनल यूनिट्स, in other words, means what which you have to tell to the patient. Madam, I will consult the patient as this is a very high risk pregnancy. Mother हाँ, and baby both are at risk. In mother, there is a risk of PIH, preeclampsia, and हाँ, also and in fetus there is a risk of moderate risk of anemia and as well as high drops. okay. So should we ask from any other audience? मैडम फोर्टनाइटली टाइटर्स करवाने चाहिए और 15 इंटरनेशनल यूनिट्स को क्रॉस करेगा टाइटर तो फिर हम एमसीए डॉपलर करवाएंगे। जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी एंड द वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट टाइम एंड एंड्स एट व्हाट टाइम? वो किस वक्त करने से हमें कुछ इंफॉर्मेशन सही मिलेगी? आफ्टर 20 वीक्स। हम्म, ठीक है। तो अब ये जो है, इसको आप रिपीट टाइटर कब करवाओगे? मैडम फोर्टनाइटली टाइटर्स करवाएंगे और अगर 15 को हम्म। क्रॉस करेगा टाइटर तो फिर हम एमसीए डॉपलर करवाएंगे आफ्टर So 20 वीक्स। if it is rapidly increasing, suppose after another 2 weeks, which would be at 18 weeks, it becomes 10. Then what? What is the risk देन now? With the increasing titers, what is the risk now which you are anticipating? And you will मैडम tell the फीटल patient. अनीमिया, फीटल Fetal अनीमिया का anemia. रिस्क है, इसके लिए एमसीए डॉपलर 18 वीक्स पे भी करवा सकते हैं। तो फीटल एनीमिया का रिस्क इसमें ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें रैपिडली इंक्रीजिंग टाइटर्स के साथ आपने जो है वो इस वक्त, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल टेस्टिंग है वही आप करोगे ना, आपने अब अगर एनआईपीटी अवेलेबल नहीं है, रैपिडली इंक्रीजिंग वो है, और अगर फर्ज किया मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो जो है वो इस वक्त जो है वो 18 वीक्स पे या 17 वीक्स पे भी अगर हम बात कर लें, इससे भी अर्ली बात हो सकती है, अगर क्योंकि खास तौर पे जो पिछला बच्चा इसका अफेक्टिव हुआ है, और अगर पिछला बच्चा इसका हाइड्रोप्स फिटेलिस था विच इज रेयर फॉर द फर्स्ट बेबी टू बी अफेक्टेड, तो उस सूरत में तो उससे कम से कम 10 हफ्ते पहले से आप समझो कि उसका इफेक्ट शुरू हो सकता है अगले बच्चे पर। तो इसलिए इसमें जो है वो अगर इतना राइज कर रहा है रैपिडली, तो व्हाट आर द ऑल्टरनेट ऑप्शंस टू नो द एग्जैक्ट सिचुएशन व्हेन एनआईपीटी इज नॉट अवेलेबल? Ma'am, chordosynthesis.
कोर्डोसेंटेसिस, To know, एमनियोसेंटेसिस, yes, madam, to know सीएस, about the ठीक है, hemato. उसमें उसमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन कोर्डोसेंटेसिस विल बी अ स्पेसिफिक थिंग टू डू, बट अगेन इट इज चैलेंजिंग टू गेट द ब्लड, फीटल ब्लड एट सच अ अर्ली जेस्टेशन, क्योंकि Yes, फीटल वेसल्स बहुत छोटी होती हैं, उसमें जो है वो उसमें से ब्लड निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। सो yes, देयर इज अनदर चैलेंज, टेक्निकल डिफिकल्टी टू परफॉर्म द कॉर्डोसेंटेसिस। तो इसलिए इसमें जो है वो हम एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलर सैंपलिंग भी कर सकते हैं, जस्ट टू डिटरमिन द ग्रुपिंग, या वो उसमें जो है उसका बेसिकली जीनोटाइपिंग, ये सब चीजें उसमें पता चल सकती हैं। अब इसमें नाउ शी हैज क्रॉस्ड 20 वीक्स सपोज, एंड नाउ यू विल yes, मॉनिटर हर विद द मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी के साथ। तो yes, पीक madam. सिस्टोलिक वेलोसिटी रिमेन्स नॉर्मल, विद इन नॉर्मल लिमिट। अब पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की जो है वो हमेशा जेस्टेशन वाइज चेंज होती है, बहुत अर्ली। हम कहते तो हैं कि हम 20 वीक से लेके हम 36 वीक्स तक की इसकी वैलिडिटी है, लेकिन जितना ये अर्ली फेज में होता है उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन भी उतनी बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होती, इसमें बाज दफा फॉल्स पॉजिटिव के भी रिस्क होते हैं। तो इसमें जेस्टेशन वाइज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो इंक्रीजेस फ्रॉम 20 वीक्स ऑनवर्ड, एंड इट इज द मैक्सिमम आफ्टर 30 वीक्स, 30 से लेके 34 वीक्स तक इसकी मैक्सिमम वो होती है, और 36 के बाद तो इसकी वैलिडिटी वैसे भी कम हो जाती है। सो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो रिमेन्स सेम, बट द एंटीबॉडी टाइटर इज गोइंग टू राइज, यानी एंटीबॉडी टाइटर उसका बढ़ता जा रहा है। अब 10 हो गया, आपने फिर 2 हफ्ते के बाद रिपीट करवाया, 12 हो गया, लेकिन मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो अल्ट्रासाउंड के साथ मॉनिटरिंग है वो भी करनी है। लेकिन जो मेरा सवाल था कि पेशेंट को काउंसल क्या करोगे, पेशेंट को काउंसल ये करेंगे कि इसमें पिछला बच्चा उसका अफेक्टेड था, इसमें ऑलरेडी द मदर इज सेंसिटाइज्ड, और मदर की जो सेंसिटाइजेशन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू कॉज द fetal hydrocephalus now at an earlier gestation as compared to the previous pregnancy, क्योंकि अब उसका ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगा। अब ये जो इसकी जो अब सपोज ये जो टाइटर है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये जो टाइटर है जो पिछली प्रेगनेंसी से चलता आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि पिछली प्रेगनेंसी इसकी कितना अरसा पहले, यानी उसका लास्ट बॉर्न चाइल्ड जो है उसकी एज क्या है। Because this is lifelong immunity, because this is an active immunization, RH iso immunization जो है वो एक्टिव होती है, और उसमें ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। सो द RH एंटीबॉडीज डू परसिस्ट इन द मेटर्नल सीरम। तो उसमें अब जो है वो चूंकि उसमें मौजूद है, अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो बेबी है ये एक्चुअली नेगेटिव हो, और ये जो टाइटर हमने आइडेंटिफाई किया है ये पिछली प्रेगनेंसी का चलता आ रहा हो। सो Yes, इसलिए हमारा फर्स्ट इंस्टेंस पे जो है वो चीज़ें हम हमेशा उसको दरमियान में रखते हैं कि मे बी दिस इज अ न्यू इन ऑनसेट, लेकिन इसमें चूंकि 16 वीक्स पे है, 16 वीक्स पे जो है वो अमूमन पिछली प्रेगनेंसी का ही ये चल रहा होता है। और इसमें जो फीटल सेल्स हैं उनका क्रॉसिंग और उनकी डिटेक्शन वो 16 वीक्स के बाद ही हम कर सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली आफ्टर 20 वीक। क्योंकि इसमें इसीलिए अब जो ज्यादातर जो अब जो नई गाइडलाइंस निकल रही हैं, इवन WHO की भी, वो कहते हैं कि 12 हफ्ते से पहले आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है NTD। इवन जब आपने इंटरवेंशन भी की हो, जैसे इवैक्यूएशन एंड क्यूरेट जाए, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज किया हो, एक्टोपिक में और मोलर में सबसे ज्यादा सेंसिटाइजेशन होने के चांसेस है, बट लेस एज कंपेयर टू दैट एट द टर्म। तो इसमें ये चांसेस हैं कि पिछली इम्यूनिटी चल रही हो, पिछली परसिस्ट कर रही हो, क्योंकि पिछला बेबी है ड्रॉप्स था, वो अफेक्टेड था। सो द मदर वाज सेंसिटाइज्ड इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, चूंकि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, सो इट विल परसिस्ट देयर फॉर एवर, और ये अगले किसी भी RH पॉजिटिव बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। अब इसमें इसीलिए इसको सीरियली मेजर करने का भी ये होता है कि अगर तो बच्चा पॉजिटिव है तो ये इम्यूनिटी, इसका जो टाइटर है वो राइज होता जाएगा। और इसके अलावा ये टाइटर राइज जब होगा तो जाहिर है इस
ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस भी है कि दिस बेबी कुड बी RH पॉजिटिव। ऐसी सूरत में बच्चे के इफेक्ट होने के चांसेस, ये सारी चीजें आप पेशेंट को बताओगे कि इसमें ये हाई चांसेस हैं एक फर्स्ट विजिट पे भी, जब उसका इनकाउंटर हुआ आपके पास एट 16 वीक्स विद दिस मच टाइटर, तो आप उसको ये सब चीजें बताओगे कि पिछली प्रेगनेंसी इफेक्टेड थी, अब इस प्रेगनेंसी में भी इफेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिछला बच्चा इफेक्टेड था, इसलिए ऑलरेडी उसमें सारी चीजें एंटीबॉडीज बन चुकी हुई हैं विच विल अफेक्ट द बेबी इफ द बेबी इज पॉजिटिव, जो हो सकता है। तो ये, और दूसरी चीज ये कि इसमें अगर बच्चा, अब क्योंकि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आप उसमें दो तीन चीजों को फोकस करते हैं, पेशेंट को बताते हैं, मतलब सारी काउंसलिंग के जो क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करते हुए कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम राइट नाउ, और उसको पिछली प्रेगनेंसी या पिछली हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इसमें चांसेस जो हैं वो हाइड्रॉप्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इसको हम टाइम टू टाइम मेजर करेंगे। और मेजर करने के, इसमें ब्लड टेस्ट के अलावा हमने ये भी देखना है कि कहीं ये राइजिंग टाइटर बच्चे को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, जो चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड के साथ भी देखेंगे और डॉपलर फ्लो के साथ, और हो सकता है हमें इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। तो ये सब चीज़ें आपने उसको बतानी है। इंटरवेंशन का मतलब ये कि किसी टाइम पे उसको ब्लड भी देना पड़ सकता है इन यूट्रो। तो ये सारा कुछ बता के फिर देन यू हैव टू डिस्कस द मैनेजमेंट, फाइनली द मैनेजमेंट, दैट हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस केस, जिसमें जो है उसमें वो आ जाएगा फोर्टनाइटली आपकी असेसमेंट ऑफ द ये जो डॉक्टर है। चलिए, वी आर गोइंग बैक टू द सादिया। जी सादिया, अब मैनेजमेंट को आप जरा थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए कि नाउ मैम इज द सेगमेंट फॉर मैनेजमेंट, इसमें कैसे आप करोगे, ये पेशेंट आपके पास है। Yes, madam. Ma'am, I will refer the patient. Ma'am, for management, first I will offer the support. I will explain the diagnosis to the couple. I will हाँ explain the maternal and fetal complications, and then I will manage the case in collaboration with MDT, with fetal medicine unit, with middle हाँ cerebral artery Doppler, and my further management depends upon the peak systolic velocity of middle cerebral artery Doppler. हाँ, ठीक है। फिर मिडिल Yes. सेरिब्रल आर्टरी, अब आगे चलते जाइए ना कि मिडिल सेरिब्रल Ma'am, आर्टरी फ्लो अगर ठीक रहेगा तो मैं, आई विल वेट एंड yes. सी, एंड आई विल कंटिन्यू टू मेजर द सीरियल असेसमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज लेवल। तो Okay, madam. ठीक है, वो सारा कुछ। Then, if middle cerebral artery is less than 1.5, then I will do weekly monitoring of middle cerebral artery peak systolic velocity and also weekly monitoring of obstetric ultrasound scan to see for the signs of hydrops and two weekly growth scan after 26 weeks of gestation. And हाँ, 20 weeks इसमें are, इसमें एक एक मिनट बेटा, इसमें थोड़ा सा आप इसको लेवल्स के हिसाब से जरा स्पेसिफाई कर दें कि अगर तो राइजिंग टाइटर हैं तो ये फ्रीक्वेंसी मैम आपकी मैम असेसमेंट मैम की आगे, वीकली हो जाएगी। मैम अगर आप, और सॉरी मैम और मैम मेरे पास आगे लेवल्स नहीं है, बस ये सिनेरियो है, फिर आप इसको मॉडिफाई वो कर दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, हम इसी को लेके चलते हैं, इट्स नॉट बैड। जी जी। तो इसमें क्योंकि देखो सिनेरियो तो कोई भी हो सकता है। यस सपोज मैडम। यही पेशेंट है प्राइमी ग्रेविडा हो, तो फिर उसमें आप क्या करोगे, वो फिर एक डिफरेंट चीज़ है, बट दिस इज एक्चुअली द मैनेजमेंट, क्योंकि यस इसमें जो डिफरेंट पोर्शन होते हैं कि आपने प्रोफाइल एक्सिस कैसे करना है, किस कंडीशन में कैसे देना है, क्या देना है, और इसको उसके डिफरेंट रिजीम्स क्या हैं, डोजेज क्या है, कैसे वो वेरी करती है, फीटोमेटर्नल हेमरेज के मेजरमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक जो प्रेगनेंसी अफेक्ट हो गई, पिछली प्रेगनेंसी अफेक्ट हो गई और अब प्रेगनेंसी है, तो इसमें आपने लेके कैसे चलना है। ठीक है, ये तो सिनेरियो तो कोई भी हो सकता है, देयर कैन बी 101, यू यस शुड मस्ट नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, जी मैम। चलें जी, और फिर Okay, ma'am, if her middle cerebral artery peak systolic velocity remains normal, less than हम्म 1.5, then I will do weekly monitoring of middle cerebral artery peak systolic velocity and also weekly monitoring obstetric ultrasound scan for growth. At 20 हम्म weeks, her anomaly scan should be done. At 24 हम्म weeks, 24 to 28 weeks, her OGTT should be done. And I will also consult the patient that every on each antenatal visits, her blood pressure and urinary protein should be done. And हम्म। if and then my aim is to deliver the patient at 37 and 35 completed weeks with steroid cover. आपने तो एकदम से छलांग लगा दी 35 वीक्स पे। ये इफेक्टेड प्रेगनेंसी जो है इसको तो अभी कई Ma'am, मरहले तय करने हैं। yes, madam. और Ma'am,
मैम हाँ। मैम अगर इसका मैम हम इफ हर मिडल सेरेब्रल peak systolic velocity is more than 1.5 then I will go for photosynthesis to measure the हम्म। hematocrit. If her हम्म। hematocrit is less than 30 then for intrauterine transfusion. हम्म। ठीक For है। in अच्छा, for in इसमें बेसिकली बेसिकली आप इसको टाइम करोगे अकॉर्डिंग टू द टाइटर लेवल्स। टाइटर Yes, लेवल रेज हो गया या उतना ही रहा तो आप फिर उसके बाद अगला है आपका मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो अगर राइज कर गया और 1.5 नहीं 1.5 मल्टीपल ऑफ मीडियन, उसके मीडियन लेवल का 1.5 ज्यादा, यानी 1.5 फोल्ड ज्यादा, तो वो अगर हो गया इसका मतलब है कि फीटल एनीमिया हो रहा है। देन यू हैव टू डिटरमिन द हेमाटोक्रिट ऑफ द फीटस, कि अगर एक खास रेंज से नीचे चली जाए तो फिर आपको ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है। और उसमें yes, टारगेट हेमाटोक्रिट कितनी होनी चाहिए इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, ये फर्क हो जाती है। और फिर उसके बाद इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन आपने करनी है, कैसे करनी है, व्हाट आर द अदर व्हाट आर द रूट्स ऑफ इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन, कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। इफ यू हैव टू गिव इट इन बिफोर द 20 वीक्स इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन तो हम कैसे करते हैं, आफ्टर 20 वीक्स हम कैसे करते हैं, दिस ऑल शुड बी नोन टू यू। ठीक है, तो ये जरा हमें बता दीजिए। सॉरी मैडम, मैम अगर इसका हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी से जब हम मॉनिटर कर रहे हैं तो फिर भी हम टाइटर मॉनिटर करेंगे, फिर तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, देखो बेटा, टाइटर को मॉनिटर करना इसलिए जरूरी है कि 15 से ऊपर जब आप जाओगे तो स्वेयर है। अब ये भी हो सकता है कि 15 पे पहुंच के भी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो ठीक रहे। मिडिल जी सेरिब्रल आर्टरी फ्लो एक मार्कर है फॉर द फीटल अनीमिया, बट जी दिस मैडम। कैन ऑल्सो बी रेस्ड इन द फीटल हाइपोक्सिया या क्रॉनिक हाइपोक्सिया, जो है वो जो कि एनीमिया के साथ हो सकता है। यानी आईयूजीआर के केसेस में भी हम मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की हेल्प लेते हैं। दो डक्टस विनोसिस जो फ्लो है वो ज़्यादा इसमें बेहतर मार्कर होता है, बेहतर पैरामीटर होता है फॉर द असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर 15 पे भी जाके मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो है तो कुछ नहीं करना, आपने उसको सिर्फ मॉनिटर करना है। लेकिन वो कितना, अब देखो एंटीबॉडीज जब एक लिमिट से यानी 30 से ज्यादा, फर्ज किया 30 से ये ज्यादा हो जाती हैं, आप सीरियसली उसको मॉनिटर कर रहे हो, तो उसमें फिर एक और भी एक जो है वो मैनेजमेंट हो सकती है टू रिड्यूस दिस अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडीज। ताकि अब क्योंकि जो फीटस का अपना इम्यून सिस्टम है वो तकरीबन जाके 20 वीक्स पे मैच्योर होता है। तो लेकिन ऑलरेडी अगर उसका क्योंकि इसमें इसमें जो एक चीज और है ना वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है टाइटर तो आपने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन तो देनी ही देनी है अकॉर्डिंग टू द मिलर सेरिब्रल आर्टरी फ्लो और उसके हेमाटोक्रिट के हिसाब से। लेकिन व्हाट अबाउट दिस हाई लेवल ऑफ द एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन मैटरनल सीरम, क्या हम उसको किसी तरीके से उसको कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं समहाउ, या उसका इफेक्ट हम कर सकते हैं, उसकी एफिकेसी को हम कम कर सकते हैं। अब ये इसी इसी कनेक्शन में अब ये एक सवाल आ गया तो जरा इसका बता दीजिए इफ यू नो इट, कि अगर ये रैपिडली राइज हो रहा है, बाल दफा ये 100 से भी ऊपर जा सकता हम्म। है टाइटर लेवल जो जहर डेफिनेटली इसमें रैपिडिटी ऑफ द सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन विल बी इंक्रीज्ड। और इसके अलावा इसमें इंट्रायूटेरन ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी। द इफेक्ट विल बी सीन विद द मोर स्पीड इन द बेबी, उसमें सारे हाइड्रॉप्स वाली फीचर ज़रा जल्दी आने के चांसेस होते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस इंक्रीजिंग टाइटर ऑफ द एंटीबॉडीज इन द मैटरनल सीरम, क्या उसको हम किसी तरीके से कर सकते हैं मैनेज? मदर के अंदर है ये। यस मैम। मैम ये तो लेकिन ये मदर को तो कुछ भी नहीं कह रहा, फीटस में एनीमिया ही नहीं कर नहीं, सकता है। मदर को कुछ नहीं कह रहा बेटा, लेकिन मदर से ही बच्चे को जा रहा है। सो द प्राइमरी सोर्स इज द मदर, यानी यस। मदर के अंदर वो कल्परिट चीजें हैं जो बच्चे में जाके नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम मदर के लेवल ही कम कर दें तो कम एंटीबॉडीज जाएंगी, उसकी जो सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन है वो कम होगी। उसमें जो एक फास्ट फॉरवर्ड जो उसकी चीज़ें जो बिगड़ रही हैं बच्चे की, अपनी जो हाइड्रॉप्स वाली फीचर्स हैं वो जल्दी आ जाती हैं, और फीटल एनीमिया उसका ज़्यादा स्वेयर हो जाता है, हेमाटोक्रीट उसकी बहुत ड्रॉप हो जाती है, उनको तो हम स्लो डाउन कर सकते हैं।
if we decrease the concentration and the titer levels of anti-D antibodies in the maternal serum. ठीक है, जस्ट अ स्कूल फॉर थॉट कि हम इसको अगर करें बच्चे, ये जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन वाली बात है ये हम बच्चे में तो करते ही हैं। और उसमें करने का मकसद क्या होता है? उसमें करने का मकसद ये होता है कि वो जो एंटीबॉडीज वाला उसका ब्लड है उसको हम एक्सचेंज कर दें, ताकि उसमें एंटीजन जो है जो एंटीबॉडीज हैं वो वाली फ्री हो जाए। एंटीजन तो बच्चे के अंदर मौजूद है, उसको तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एंटीबॉडी फ्री ब्लड के साथ हम उसको एक्सचेंज करते हैं। उसका एक अपना बेसिक जो ब्लड ग्रुप है वो तो रहेगा। क्यों? और ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बार दफा इसलिए भी हेल्पफुल होती है न्यूनेट्स में कि माँ से ट्रांसफर हुई हुई एंटीबॉडीज बच्चे के ब्लड में बार दफा 6-6 महीने परसिस्ट करती है। और उससे बेबी को जो है बार दफा क्रॉनिक अनीमिया और जॉन्डिस, क्योंकि जब हेमोलिसिस होगी तो उसमें बिलीरुबिन तो रेज्ड होगा, और वो एक जॉन्डिस करनिक्टर्स ये सारी चीजें उसमें डेवलप हो सकती हैं। तो इस चीज को करने के लिए फिर प्लाज्मा फ्रीसिस, जो बच्चे में प्लाज्मा फ्रीसिस भी करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। लेकिन अब इसके लिए अब देखो हम हमेशा ये कहते हैं कि जब RH एंटीबॉडी टाइटर पॉजिटिव आ जाए मदर में तो प्रोफाइलैक्सिस का कोई रोल नहीं होता। इज इट सो? यस मैम। यस मैम। कि हम उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं तो हम एंटीबॉडीज डालेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? यस। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं टू यूज इट। और वो लिमिटेशन उसमें जो हम यूज कर सकते हैं उसका जो एक वाहिद रोल होता है वो इसी तरह के केसेस में होता है, और फिर हम उसको इंट्रावीनस के तौर पे देते हैं। यानी हम उसको इंट्रावीनस देंगे और उसको जो है वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा, और उसकी डिफरेंट प्रेपरेशन होती है। जो नॉर्मली जो हम एंटीडी लगा रहे होती हैं वो इंट्रामस्कुलर होता है, यस मैम। IV प्रेपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो IV प्रेपरेशंस हम इसमें देंगे सो एज टू न्यूट्रलाइज एंड सो एज टू suppress the maternal immune system not to produce more anti-D antibodies which are permanent antibodies। जबकि ये जो हम प्रोफाइलैक्सिस की सूरत में दे रहे होते हैं ये भी एंटीबॉडीज ही हैं, और एंटीबॉडीज लेकिन इनकी एक शॉर्ट लाइफ है। ये ज्यादा से ज्यादा 6-10 हफ्ते, इतने इससे ज्यादा नहीं परसिस्ट करती। ठीक है। इसीलिए बाज दफा अगर पेशेंट को कुछ टाइम पहले अगर एंटीडी मिला हो तो वो पॉजिटिव भी आ जाता है। लेकिन इसमें उसके टाइटर फर्क होते हैं। यानी जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के हमेशा ये प्रोफाइलैक्सिस की सूरत में जो हम देते हैं दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें मदर को खुद काम नहीं करना पड़ रहा, उसके इम्यून सिस्टम ने काम नहीं किया लेकिन हमने बाहर से एंटीबॉडीज उसके अंदर डाल दी। लेकिन इनके ये जो हम थेराप्यूटिक डोजिस में देते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, उसमें इसके लेवल्स, यानी हम तो टाइटर की बात करते हैं ना, टाइटर हम डिटेक्ट करें, लेकिन उसके देने के बाद अगर RH एंटीबॉडी टाइटर हो तो वो कभी भी 0.4 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज्यादा नहीं बढ़ते कॉमनली। बट इफ इन एडिशन टू दैट देयर इज ऑलरेडी एन आइसोइम्यूनाइजेशन तो डेफिनेटली उससे ये ज्यादा हो जाएंगे। अब इसमें ये बात ये हो रही थी कि अगर ये बहुत ज़्यादा लेवल्स हो जाएं तो बात इससे शुरू हुई थी कि हम टाइटर क्यों करा रहे हैं। तो टाइटर में उसके एब्सोल्यूट लेवल पे अगर रैपिडली इंक्रीजिंग है और बहुत ज़्यादा हो गए तो ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे जब 30 से ऊपर ये चले जाएं, बाद दफा 100 तक भी पहुंचते हैं, तो उसमें हम IV एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं। और उसका ये काम होता है कि एक तो इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है मदर का ताकि वो और एंटीबॉडीज ना बनाए। दूसरी चीज ये है कि ये इसका जो ट्रांसफर है इन एंटीबॉडीज का, ये मैक्रोफेजिस के ऊपर चिपक के जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा एंड देन टू द बेबी। तो ये उससे प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देता है जो हम एंटी-D खुद से दे रहे होते हैं। तो that carrier protein is no more available for the already present anti-Ds in the maternal serum, जो कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन के नतीजे में पैदा हुआ। इज दिस क्लियर? मुश्किल यस है मैम। थोड़ा सा समझना, लेकिन इसको देने का मकसद, वाहिद रीजन यही हाई एंटीबॉडी टाइटर्स होते हैं। और ये खासतौर पे हम उनमें देते हैं जिनमें टाइटर इनिशियली फर्ज किया ये, अब एंटी-D टाइटर आपने मुझे 4 बताया लेकिन फर्ज किया ये 30 होता, तो हम इसको इसी वक्त देते हैं ताकि इसका जो अर्ली ऑनसेट हाई ड्रॉप्स है वो ना हो, और ताकि वो उसके लेवल्स को भी कम कर दे, उनके ट्रांसपोर्ट को टू द फीटस वो भी कम कर दे,
और उससे उसकी हाई ड्रॉप्स के फीचर्स बहुत स्लो, ये नहीं है कि ये नहीं होगा, होगा, लेकिन उसके हाई ड्रॉप्स के फीचर बहुत स्लोली और लेट आएंगी। और इसके अलावा उसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, और ये किसी हद तक इसको न्यूट्रलाइज करके, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके, उसके ट्रांसपोर्ट को जो है वो ब्लॉक करके, ये इस तरह से उसको मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फिर रोल आएगा। सो असेसमेंट ऑफ द एंटीबॉडी टाइटर, मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो इफ रेज्ड अबव अ सर्टेन लिमिट, तो ऐसी सूरत में हम फिर उसको बाकी अल्ट्रासाउंड के साथ जो मॉनिटरिंग है वो तो चलेगी आफ्टर एवरी 2 वीक्स। और अगर जो ये जो असेसमेंट हो रही है एंटीबॉडी टाइटर की और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो की, ये होगी एट एवरी वीक्स। अगर हाइड्रॉप्स के फीचर ऑलरेडी आ गए हैं तो फिर इसमें कितनी रैपिडिटी के साथ वो होता है, वो सारा कुछ हमें देखने के लिए हफ्ते बाद ही करना पड़ेगा, एंड समटाइम्स इवन मोर फ्रीक्वेंटली अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। क्योंकि हाइड्रॉप्स होने से पहले अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो, अगर हम या उसके हेमाटोक्रिट के हिसाब से अगर हम उसको पहले इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं तो हाइड्रॉप्स डेवलप नहीं होता, या माइल्ड हाइड्रॉप्स अगर डेवलप हो भी गया हो तो वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि हमने फीटल अनीमिया को करेक्ट कर लिया एट राइट टाइम, बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर के बच्चे का जो है वो पूरा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए, जो कि एनीमिया के नतीजे में हुआ, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर जो होता है, और उसके नतीजे में सारी प्लूरल इफ्यूजन है, पेरिटोनियल उसके साइटिस हैं, स्किनोडिमा और एवरी साइन ऑन द अल्ट्रासाउंड। तो इस तरह से फिर इसको हमने लेके चलना है। ठीक है, बाकी उसका। मैडम, हाँ जी। मैडम मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो आप बता रही हैं कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए मैडम वो तो हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेंगे, बट मैडम वो कितनी डोज में दिस देंगे? इज दिस इज जस्ट टू मेंशन, दिस इज जस्ट टू मेंशन दैट यू शुड नो। अगर कोई पूछे कि एक पेशेंट जो है वो RH पॉजिटिव है, तो जी उसमें जी। एंटीडीज का क्या रोल है, तो कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि आपने ट्रांसफ्यूजन कब देनी है, उसकी इंडिकेशन क्या है, ट्रांसफ्यूजन में कौन सा ब्लड देते हैं, एडल्ट ब्लड जाहिर है वो सारा कुछ आपको पता ही होगा, किन किन तरीकों से हम दे सकते हैं, और कितने इंटरवल के बाद हमने रिपीट करना होता है, प्री ट्रांसफ्यूजन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, उसकी हेमाटोक्रिट चेक करनी है, और उसके बाद दोबारा से फिर उसको सीरियली हम दे रहे होते हैं, दूसरी ट्रांसफ्यूजन अमूमन 2 हफ्ते के बाद, और उसके बाद फिर 3-3 हफ्ते के बाद, क्योंकि बेसिक डेफिसिट हम पूरा कर चुके होते हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपने मेंशन करनी है। तो ये है जो एक टिपिकल सिनेरियो है। बट इफ समवन आस्क यू कि एक RH एंड सेंसिटाइज्ड मदर में क्या रोल है, क्या हम प्रोफाइल, ये जो इंजेक्शन प्रोफाइलैक्सिस है, या ये जो एंटीबॉडीज हैं, इनका क्या रोल है, तो वहां पे आपको ये एक समझो हिस्टोरिकल पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। इट इज नॉट जी मैम। मेंशन्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, लेकिन ये है कि उसमें फिर रोल उसका आ जाता है, और ये यूज होता है बट वेरी रेयरली। ठीक है, इसको इसको फिर इसको बेसिकली चूंकि हम खुद नहीं दे रहे होते, हमें एंटीडी की डोज पता है फॉर प्रोफाइलैक्सिस और फॉर एनी सेंसिटाइजिंग एजेंट, लेकिन चूंकि ये एक रूटीन में होने वाली चीज नहीं है, इस वजह से इसका इतना ज्यादा मेथोडोलॉजी मेंशन भी नहीं है। बस ये है कि सिर्फ इसमें आपने इंट्रावीनस देना है इन कोलेबोरेशन विद द फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट, और फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पे हैं। उस तरह से हमारी डिफरेंट रजिस्ट्रीज नहीं है, यानी नियोनेटल मेडिसिन के पूरा जो है वो एक रजिस्ट्री नहीं होती, ऑन्कोलॉजी की वो नहीं है, इस तरह से डिफरेंट वो नहीं है, डिसिप्लिन उस तरह से मेंशन नहीं है, बट ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड सम हॉस्पिटल्स फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पे उनके कोलैबोरेशन के साथ ये सारा कुछ किया जाता है अगर जरूरत पड़े तो। जाहिर है ये बहुत कॉमनली होने वाला तो नहीं है। इसमें अब ये जो सेंसिटाइजेशन है, इस पे कितने पे सेंसिटाइजेशन शुरू होती है, और ये कितना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोफाइलैक्सिस में कैसे, कब, कैसे, ऑन गोइंग हेमरेज के साथ, हेमरेज नहीं हुआ तो क्या, सिंगल डोज, डबल डोज, ये सारी चीजें। ठीक है। मैडम एक और क्वेश्चन है कि ना, हाँ जी। जैसे हम लोग लेबोरेटरी में करवाते हैं, पहले तो हम पेशेंट का क्वालिटेटिव करवाते हैं ना कि RH एंटीबॉडी टाइटर करवाएं, पॉजिटिव हाँ आता है, देन वी हाँ क्वांटिफाई हम करते हैं कि 1:4। तो मैडम कुछ लेबोरेटरीज में टेस्ट इस तरह से देते हैं, और अमूमन एग्जाम में भी मैंने सुना है कि 1:4, 1:8, 1:16। यस। तो मैडम आई जस्ट वांटेड टू नो कि कितना से, मतलब अच्छा, अगर जैसे हम लोग मैं उसमें बताती हूँ ले, इसमें। ये मैम ये थोड़ा सा इसमें बेसिकली, गाइड हाँ, कर दें। ये बेसिकली ये एक है जो कि हम
टाइटर के हिसाब से करते हैं, एग्जैक्ट हमें उसकी अमाउंट पता चल जाती है कि यस ये मैडम। इतने इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर है। और दूसरा है जो रेशो इन डाइल्यूशन के हिसाब से होता है, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 एंड सो। अब जितनी ज्यादा हाई डाइल्यूशन में वो पॉजिटिव आती हैं, इसका मतलब है उतना ही स्ट्रॉन्ग है। यानी 1:16 से ज्यादा जो टाइटर होगा वो 1:32 में होगा। यानी हाई डाइल्यूशन के बाद भी वो डिटेक्टेबल है, इसका मतलब है ज्यादा है। तो इसमें लेकिन वो है एक रेशो। रेशो आपको सिर्फ एक रेलिवेंस बताती है, आपको एग्जैक्ट उसकी अमाउंट नहीं बताती। तो उसमें जो सेंसिटाइजेशन है, अगर इसमें हम कहते हैं कि 4 के बाद सेंसि दैट इज द क्रिटिकल लिमिट जिसपे सेंसिटाइजेशन शुरू हो जाती है, तो 1:16 वो वाली रेशो है जिसपे सेंसिटाइजेशन शुरू हो जाती है। 1:8 पे हम अलर्ट होते हैं, लेकिन सेंसिटाइजेशन जो है वो 1:16 पे शुरू हो जाती है। 1:32 पे से लेके 1:64 पे ये मॉडरेट टू सीवियर टाइप में आ जाती है। लेकिन हमेशा जो क्वांटिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, दैट इज अ बेटर असेसमेंट ऑफ द एक्चुअल टाइटर वॉल्यूम। तो इसलिए इसको प्रेफरेबल ये होता है कि इसको आप इसमें क्वांटिफिकेशन करें इन इंटरनेशनल यूनिट्स एज कंपेयर टू द रेशो। रेशो में थोड़े से प्लस माइनस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दिस एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जी मैम। तो ये इस तरह से इंटरचेंजेबल है। तो अब हम कहाँ पे थे? हाँ ठीक है, अब इसमें हमने इसको डिसाइड कर लिया कि हमने देना है ब्लड। जी कहाँ गई हमारी प्रेजेंटर? यस सादिया। मैडम। जी सादिया, अब इसका जो हेमाटोक्रिट है आपने डिटरमिन करना है, और आपने ये बताया था कि लेस देन 30 है तो आप इसको ट्रांसफ्यूज करोगे। यस मैम। अब ट्रांसफ्यूजन के लिए व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन, एंड हैव यू एवर सीन इट? या हाँ, नो आप मैडम। आपके सेटअप में कहीं पे होता है ये? मैम, देखा कभी नहीं है। अच्छा, देखा कभी नहीं है लेकिन होता है। ठीक है मैम। जी। मैम, नहीं देखा कभी। ओके, नहीं देखना और होना दो फर्क चीजें हैं ना। यस देखना का मैम, मतलब होता है है गंगाराम लेकिन। जी। यस मैम, गंगाराम और होता फातिमा मेमोरियल है। में होता है। जी मैडम गंगाराम और फातिमा मेमोरियल में होता है इंटरट्रान ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो वहां तो होता है और ये प्राइवेट सेटअप में भी होता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम कहें, फातिमा मेमोरियल तो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, लेकिन गंगाराम में ये फीटल मेडिसिन का चूंकि वो है तो उसमें वहां पे ये होता है। तो इसमें अब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन के लिए एक तो हमने डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू द हेमाटोक्रिट, और उससे पहले हमने असेस किया हुआ था मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो। और मिडल यस मैम। सेरिब्रल आर्टरी फ्लो पे लगा कि नाउ इज द टाइम टू गो फॉर द इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन, अदरवाइज इसमें हाइड्रॉप्स फिटालिस या तो माइल्ड होगा या अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन अबाउट टू हैपन अगर हम उसको करेक्ट नहीं करते तो इसमें जो है वो फिर आप कैसे इसमें सिलेक्ट करोगे? प्रोटोकॉल क्या होता है उसका? Ma'am, the first we will take. It should be done in the fetal medicine unit with and blood group, donor blood group will be the ABO compatible with the fetus. It should हाँ, be CMV negative, K और negative, अगर बच्चे अगर अमूमन बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप हमें ना पता हो तो उसके लिए अगर फर्ज किया हमने पहले से अरेंज करना है, क्योंकि जिस वक्त O टाइम पे, negative. हाँ ओ नेगेटिव, O, तो जिस टाइम पे हमने ट्रांसफ्यूज करना है हम तो उसी वक्त हेमाटोक्रिट उसका देखेंगे, एक ही सेटअप में। yes, और उसके madam. लिए जो है वो ब्लड का सारा अरेंज किया होगा पहले। ठीक है, कंपैटिबल ब्लड इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। और Yes. It should be हाँ CMV negative, K negative, hepatitis B, C, HIV negative, and also its hematocrit is 0.7 to 0.8, and it should be irradiated to decrease the risk of host versus disease हाँ, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। in second. और अगर आपने इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में देना है तो ये हेमाटोक्रिट जो है, जो यानी जो आपका टारगेट हेमाटोक्रिट है, वो होना चाहिए 80 to 90, 0.8 to 0.9। ठीक है, उसका Yes, थर्ड madam. ट्राइमेस्टर में जाके हेमाटोक्रिट की जो है वो तकरीबन 45 टू समझो कि वो हो जाता है 45 to 55% उसका हेमाटोक्रिट हो जाना चाहिए। तो
अब इसमें अब ये होता है कि हम तो जिसका ब्लड हम चेक, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन, एडल्ट ब्लड होता है जो कि हम देते हैं। तो एडल्ट ब्लड में दिस इज पैक्ड सेल वॉल्यूम की सूरत में दिया जाता है, प्लाज्मा को सेपरेट करके। अब जब ये हम ब्लड देते हैं तो फीटल हीमोडायनामिक्स पे क्या इफेक्ट होते हैं? मैम इट विल इंक्रीज द हेमाटोक्रिट लेवल ओ एंड वो तो आइडियल है, वो तो उसका इफेक्ट टू बी अचीव्ड है ना। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? fetal loss ओके। in and एडल्ट सेल जब फीटस में जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसलिए उसमें जो है वो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और दूसरी बात ये कि जब ये हेमाटोक्रिट हम चेंज करते हैं तो देन वी कैन नॉट रिलाई ऑन एमसीए के ऊपर ज़्यादा हम, क्योंकि वो एमसीए चेंज हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही हमें 1% चांसेस ऑफ यूटरन इन्फेक्शन भी हैं, प्री टर्म बर्थ के भी हो सकते हैं। और अगर हमने एक वेसल को वो करके किया तो उसमें टेम्पोनेट भी हो सकता है, टेम्पोनेट इफेक्ट भी हो सकता है, फीटल लॉस जिसके नतीजे में हो सकता है। तो इसलिए ये सारी कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम मरीज को पहले बताएंगे। अब इसमें हम जो कहते हैं कि इसका के सी सब चीज़ें नेगेटिव होनी चाहिए। yes, तो इसको हम कब स्क्रीन करेंगे? एंड हाउ ओल्ड द ब्लड शुड बी विच हैज टू बी ट्रांसफ्यूज्ड? it should be less than 5 days old. हाँ, मैम प्रेफरेबली लेस देन 24 आवर्स ओल्ड। अब 5 डेज ओल्ड में क्या मसला होता है? 5 डेज असल में होता ये है कि जब एंटीडी, हम तो ब्लड को सिर्फ चेक कर रहे हैं एंटीडी के लिए, एंटीडी एंटीबॉडीज के लिए, हम बाकी रेड सेल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट ही नहीं कर रहे होते। लेकिन जो अच्छी लैब्स हैं वो सिर्फ एंटीडी को नहीं, बाकी रेड सेल एंटीबॉडीज को भी चेक कर रही होती हैं, बिकॉज दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंट सिचुएशन इफ यू ट्रांसफ्यूज इट। इसी वजह से इसमें के सी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये असेस होती हैं। और ये एंटीबॉडीज इसीलिए जिसमें हमने ट्रांसफ्यूज करना होता है, इवन इन द एडल्ट्स भी, अगर एक एडल्ट का ब्लड दूसरे एडल्ट को लगना है तो भी इसमें वीकली बेसिस पे इसके एंटीबॉडीज लेवल चेक होने चाहिए। सो एक दफ़ा अगर हमने ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग कर ली तो ये नहीं है कि हम इसको महीने बाद भी लगाएंगे तो वो लगा सकते हैं, नहीं, वो दोबारा से उसकी ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग होगी, क्योंकि उसमें हो सकता है इस सारे अरसे में नए एंटीबॉडीज बन गए हों, तो जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं ऐसी मदर्स में जिनके जो रिप्रोडक्टिव एज में। तो इस वजह से इनको फ्रेशली होना चाहिए। 5 डेज ओल्ड दो इज अ लिमिट। जैसे हम कहते हैं कि एंटी डी लगाओ तो वो 72 आवर्स तक हो सकता है, बट द आइडियल थिंग इज कि 24 आवर्स, या yes. उसके बाद फिर 3 डेज ओल्ड भी होना चाहिए। वेयर यू गिव ट्रांसफ्यूजन, इंट्रायूट्रन ट्रांसफ्यूजन देने के क्या क्या तरीके हैं? आई मीन कहाँ कहाँ पे हम इसको ब्लड को डाल सकते हैं? Ma'am, before 20 weeks intraperitoneal and after 20 weeks it could be given into intrahepatic vein, it हाँ intracardiac vein and into the umbilical cord near its placental insertion. हाँ, प्लेसेंटल इंसर्शन पे या इवन फीटल एब्डोमेन पे भी, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर एक फिक्स्ड, क्योंकि मोबाइल जो कॉर्ड का सेगमेंट है उसमें उस तरह से उसको फिक्स करना और डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो मैंने देखा हुआ है उसमें तो इंट्राहेपेटिक वेन के अंदर डाला जाता है एंड वेरी ब्यूटीफुली ट्रांसफ्यूज्ड। और Yes, ma'am, उसके, according to guideline, intrahepatic is preferred route. हाँ, वो इसलिए कि वो फिक्स होता है, आसानी से आप उसको कर सकते हो। और Mm. ये दूसरी चीज ये है कि पहले आप 1 मिलीलीटर ब्लड ब्लड वहां से ड्रॉ करते हो, और उसके बाद फिर उसमें वो देख के सारी उसकी हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप और ये सारा कुछ देख दाख के फिर आपने उसको उसके हिसाब से आपने ट्रांसफ्यूज करना है। तो ये था। अब इसमें ये तो है जो उसकी मतलब उस पे, और ये इसकी चूंकि एक्सपेक्टेड हेमाटोक्रीट ये था। अब चूंकि हेमोलिसिस पैथोलॉजी इज स्टिल देयर, तो ये हेमोलिसिस विल कीप ऑन गोइंग। Yes, ma'am. इसीलिए फिर हम इसको जो सेकेंड ट्रांसफ्यूजन है, ताकि तो उसका प्रोसेस होल्ड डाउन हो जाए, वो हम 2 हफ्ते के बाद देते हैं, और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो 3-3 हफ्ते के बाद। और यूजुअली जिस टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्लीस्ट भी अगर हो तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होता है।
अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के साथ होते होते उसकी मॉनिटरिंग करते करते मे बी 34 वीक्स हो जाए। अब अगर हमें लगता है कि मिनिमम मैच्योरिटी हैज बीन अचीव और द बेबी इज गोइंग ओके एज फॉर द जो कंडीशन सेवेरिटी है उसमें कोई हाई ड्रॉप्स अभी नहीं हुआ या माइल्ड था और वो मैनेजेबल हो गया, तो रादर देन रिपीटिंग ट्रांसफ्यूजन अगेन एंड अगेन इट इज़ बेटर टू डिलीवर द बेबी एंड देन टू गो फॉर द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। और उसमें कॉर्ड ब्लड जो आप लेते हो उस पर डायरेक्ट कोम्स टेस्ट आप करते हैं, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो करेंगे, उसका ब्लड ग्रुप देखेंगे और उसके अलावा हीमोग्लोबिन और बिलीरुबिन लेवल ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये डायरेक्ट कोम्स टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट इज एस्टिमेशन ऑफ द एंटीबॉडीज इन द मैटरनल सीरम इन फ्री फॉर्म, जबकि डायरेक्ट कोम्स टेस्ट में यही एंटीबॉडीज जो हैं ये फीटल आरबीसीज के ऊपर चिपकी हुई होती हैं। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोम्स टेस्ट। तो ये तो, सॉरी मैडम, हाँ जी, मैम अगर बेबी में आ जाती है एंटीबॉडीज तो देन वी विल गो फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा फेरेसिस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ओके। जो कि और जाहिर है बिलीरुबिन लेवल को फिर आप फोटोथेरेपी भी दे सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें ट्राई की जा सकती हैं। इम्यून मॉड्यूलेटर्स भी दिए जा सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी दी जा सकती हैं जो कि उन एंटीबॉडीज को ब्लॉक कर सकती हैं। सो देयर आर द डिफरेंट थिंग्स विच कैन बी प्रैक्टिस्ड इन दिस पेशेंट, इन दिस चिल्ड्रन। तो लेकिन यह है कि इनमें चूंकि मॉर्बिडिटी रिस्क ज़्यादा होता है ड्यू टू ऑनगोइंग हेमोलिसिस, तो हमारी यही वो होती है कि उसको उस एंटीबॉडी से क्लियर कर दिया जाए जो ऑलरेडी उसके बॉडी में, उसके ब्लड में मौजूद हैं, जो मैटरनल ट्रांसफर से आई उसके अंदर। तो ये तो हो गया जो कि एक आर एच आइसो इम्यूनाइज्ड मदर है। अब इसमें ये है कि चूंकि अब ये वाली चीजें आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन वाला रिस्क, अब चूंकि ये फर्स्ट बेबी में आपने शो किया, सो प्रोबेबली सम टाइम शी हैज रिसीव्ड सम ओ पॉजिटिव ब्लड, आर एच पॉजिटिव ब्लड, जिसके नतीजे में ऑलरेडी शी वॉज इम्यूनाइज्ड और बेबी अफेक्ट हो गया। क्योंकि जब भी कोई नई एंटीबॉडीज बनती हैं इन रिस्पॉन्स टू सम एंटीजेंट्स, तो पहले हमेशा आईजीएम बनती हैं जो कि तकरीबन 6 या 8 हफ्ते तक रह सकती हैं, और उसके बाद ये आईजीजी लेवल बनते हैं। आईजीजी लेवल हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। अब आईजीजी लेवल्स का जब तक टाइटर एक लेवल पे नहीं पहुंचेगा वो बच्चे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो उस आईजीजी लेवल को अमूमन उस टाइटर तक पहुंचते पहुंचते अगर मदर सेंसिटाइज हो गई फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो अमूमन फर्स्ट बेबी इज स्पेयर्ड फ्रॉम द इफेक्ट्स, और सेकंड बेबी है जो कि ज्यादा इफेक्ट उसमें होने के चांसेस होते हैं। बट दैट इज अ टिपिकल सिनेरियो। इन दिस केस वी कैन एक्सपेक्ट कि सम सेंसिटाइजेशन हैज अकर्ड ऑलरेडी इन द पास्ट, और क्योंकि अगर ये पिछली प्रेगनेंसी में ही हुआ होता तो भी इसमें हाई ड्रॉप्स बच्चे में ना होता, मे बी अर्ली नियोनेटल जॉन्डस उसमें हो जाता, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बट नॉट कि फुल फ्लैश हाई ड्रॉप्स फिटालिस उसको हो जाए। और इसमें जो या फिर उसने कोई ज़्यादा चांसेस यही हैं कि किसी वक्त उसको उसको पॉजिटिव ब्लड, इसलिए उसको ये हिस्ट्री में हमने उससे पूछना होता है। अब हम आते हैं व्हेन द सपोज द पेशेंट इज जस्ट क्विकली टू कवर इट, टाइम भी हमारा हो गया। तो इसमें द मदर, द पेशेंट हु हैज कम टू अस एट 22 वीक्स, और पेशेंट इज आर एच नेगेटिव, द हस्बैंड इज आर एच पॉजिटिव। तो उसमें हमारा सिनेरियो, वी डोंट नो द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट, वी डोंट नो द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड और ब्लड ग्रुप ऑफ द बेसिकली फीटस, यानी हमने एनआईपीटी नहीं करवाया और हमने जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड नहीं करवाया। सो व्हाट आर द थिंग्स टू डू इन दिस पेशेंट हु इज नॉट सेंसिटाइज्ड एट दिस मोमेंट, रादर जो नेगेटिव है और अभी हमें पता नहीं है उसका सेंसिटाइजेशन स्टेटस भी नहीं पता, And क्विकली। we will give routine antenatal prophylaxis as well as postnatal. When and how and before Ma'am, that routine what you will antenatal. do. Okay, ma'am, routine antenatal prophylaxis can be given in the single dose as well as two doses. If we give single dose 1500 international unit at 28 to 30 weeks, if we हाँ, be give in two doses, then first dose at 28 weeks, 500 international हम्म, unit, and then second dose at 34 weeks with the हाँ, same dose. ठीक है। और उससे पहले आप एंटीबॉडी इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट करवाओगे, आईसीटी करवाओगे, Yes, ठीक है, madam. जस्ट टू नो द स्टेटस। जैसे आपने इस प्राइमी का करवाया होगा पिछली दफा तो वो पॉजिटिव आई होगी,
और जैसे अब Yes, ma'am. करवाया ज़ाहिर है, एक हाई ड्रॉप्स हो तो फिर उसमें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जानना कि अब ये बच्चे का क्या सिचुएशन होगी अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसमें जिसका एंटीबॉडी स्टेटस नेगेटिव है, मदर इज नॉट सेंसिटाइज्ड, वहां पे हम फिर प्रोफाइलैक्सिस देंगे। ठीक है। Yes, ma'am. प्रोफाइलैक्सिस उसमें जो इन्होंने बताया दैट इज ओके। लेकिन फर्ज किया आपने उसको एक एंटी लगा दिया, सिंगल डोज आपने लगा दी। अब इसमें डिपेंड करता है कि अब इसको 32 वीक्स पे जाके शी हैड एन एपीएच। 32 पे नहीं, समझ लो 31 वीक्स पे जाके Sorry, 20 ma'am. 28 वीक्स पे आपने एक सिंगल डोज वाला प्रोफाइलैक्सिस लगा दिया, Yes, और madam. 31 पे यानी 3 हफ्ते के बाद उसको जो है वो एक एपीएच हुआ। Ma'am, there is no need to repeat, but we can go for a clear test for the assessment of fetal-maternal hemorrhage. आर यू श्योर? Ma'am, yes. Ma'am, हम fetal-maternal hemorrhage से assess कर लेंगे ना? नहीं, फीटो मैटरनल हेमरेज तो करोगे ही, लेकिन अगर फर्ज किया आपने 3 हफ्ते पहले लगाया है Ma'am, और we तीन can हफ्ते repeat it for after 6 weeks. नहीं, ठीक है, उसका इफेक्ट 6 वीक्स तक रहता है, बट स्टिल यू विल गिव एन अदर डोज अकॉर्डिंग टू द क्ले हॉर, जो उसके जो है फीटोमेटर्नल हेमरेज की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक आप एडिशनल डोज दोगे। यानी हर Okay. एमएल के पीछे आपने 125 इंटरनेशनल यूनिट्स लगाने हैं उसको। Yes. ये जरूरी है, क्योंकि 1500 जो आपने दिया वो कितना ब्लीड कवर कर रहा है? फीटो मैटरनल हेमरेज कितना कवर करेगा ये 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली डोज जो आपने Ma'am, सिंगल? 1 ml, 125 ml, 1 ml, then we will count. नहीं नहीं, मैम मैं ये 12 पूछ रही 12 हूँ 12 ml ब्लीड आपने आपने जो करेगा। दिया 1500 वाला वो कितना, यूजुअली जो फीटो मैटरनल हेमरेज है वो कितना होता है, चलो इस तरह से बताओ। Point four, if point four ml is, it can sensitize the mother. मैम 0.25 ml पे सेंसिटाइजेशन होती है ना। हाँ, ठीक है। तो इसमें जो हम देखो 12 ml. प्रोफाइलिसिस I में mean, it हम will cover the 12 ml of maternal hemorrhage. जो हम डोज देते हैं 1500 वाली, दैट कवर अप टू 15 मिलीलीटर ऑफ फीटो मैटरनल हेमरेज। और अमूमन 4 ml तक का, हमें सेंसिटाइजेशन की लिमिट नहीं पूछ रही, ये कि अमूमन जो फीटो मैटरनल हेमरेज है वो कितना होता है। तो फीटो मैटरनल हेमरेज अमूमन 1 मिलीलीटर तक इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम अप टू 4 ml। सो दिस डोज इज मच अबव द रिक्वायर्ड डोज। अब अगर हम हर प्रेगनेंसी में उसको क्वांटिफाई कर लें फीटो मैटरनल हेमरेज को बाय द क्लेहॉर टेस्ट, तो इसकी डोज हमें कम देनी पड़ेगी। यानी ठीक अगर है. हम इसके मुताबिक जाएं 90, तकरीबन इसमें 1% केसेस हैं जिसमें 4 ml से ऊपर जाता है। यानी फीटो मैटरनल हेमरेज 4 ml से ऊपर तकरीबन, उससे ज़्यादातर तो इसी रेंज में ये कवर हो जाता है, लेकिन सिर्फ 1% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फीटो मैटरनल हेमरेज ज़्यादा होता है। तो या तो हम उसमें दो चीज़ें हैं कि जस्ट टू क्वांटिफाई द एग्जैक्ट डोज, कि या तो हम उसको वैसे ही लगा दें 1500 जैसे हम अमूमन करते हैं, या फिर हम उसको क्वांटिफाई करके उसको मैक्सिमम जो डोज दें आफ्टर 20 वीक्स वो 500 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली दें, बिकॉज 500 इंटरनेशनल यूनिट कैन न्यूट्रलाइज up to 4 ml of feto-maternal hemorrhage which occurs in 98% of the cases। अब जहां पे कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, जैसे प्लेसेंटल एब्रप्शन होगी जहां पे आपको प्लेसेंटा मैनुअली सेपरेट करना पड़ा, ये सारी चीजें हैं, या आपने कुछ और ऐसा ईसीवी की या इस तरह की चीजें, तो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये ज्यादा है। अब क्ले हॉर टेस्ट से फीटो मैटरनल हेमरेज की क्वांटिफिकेशन भी इतनी प्रैक्टिस नहीं की जाती, लेकिन ये बाहर ये वेस्ट में इसको क्वांटिफाई इसलिए करते हैं टू लिमिट द रिसोर्सेज, टू अप्रोप्रिएटली यूज द रिसोर्सेज। अब देखा जाए तो हम बहुत सारे पेशेंट्स में 1500 वाली जो डोज है वो एक्स्ट्रा लगा रहे होते हैं।
टू Yes. कवर 15 ml ऑफ द फीटो मैटरनल हेमरेज, जबकि रिक्वायरमेंट उसकी 500 तक होती है ज्यादातर केसेस में, 98% केसेस में। तो अगर उसको हम क्वांटिफाई कर लें तो फिर उसमें अब बात हो रही थी कि हमने 3 हफ्ते पहले लगाया, तो अब इसको हमने दोबारा देना है या नहीं देना। देन गो फॉर फीटो मैटरनल हेमरेज असेसमेंट, और उसके मुताबिक जो एक्स्ट्रा जितना फीटो मैटरनल हेमरेज हुआ उसके मुताबिक पर ml ऑफ फीटो मैटरनल हेमरेज अब 125 इंटरनेशनल यूनिट दे दें। Okay. और इसमें होता यह है कि जब आप जो सेंसिटाइजेशन इवेंट्स हैं उस पे जब हम देते हैं ना एक्स्ट्रा डोज, तो एक्स्ट्रा डोज देने के बाद आपने ये देखना होता है कि ये जो हमने दिया, ये जो हमने दिया है इसको प्रोफाइलैक्सिस जो दिया है ऑन द सेंसिटाइजेशन इवेंट, उसने नए आरबीसीज जो फीटल आरबीसीज थे उनको मदर के ब्लड से क्लियर किया या ना किया। दैट अगेन विल बी असेस्ड बाय क्ले हॉर टेस्ट, क्योंकि fetal nucleated RBCs can be easily identified in the high power electron microscope, बल्कि सिंपल वाली माइक्रोस्कोप से भी पता चल जाता है। ठीक है, तो उसको मैम ये रिपीट कब करेंगे फिर हम? जी, इसको मैम ये फिर इसको फिर कम से कम हम 48 to 72 आवर्स के बाद करते हैं। यानी ये जो टेस्ट है फिर हम इसको उसके बाद करते हैं, जस्ट टू सी कि क्या वो सेल्स जो नए उसमें आए वो क्लियर हुए या नहीं हुए। क्योंकि जब हमने पहले उसका प्रोफाइल एक्सिस लगाया था उस वक्त तो कोई सेंसिटाइजेशन एजेंट नहीं था, इवेंट नहीं था। तो उसमें वी एक्सपेक्ट, हालांकि साइलेंट फीटो मैटरनल हेमरेजेस डू अकर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि हमें मतलब उस तरह से नहीं पता चलता। और उसमें ओवरऑल जो एक जिसमें इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस हम नहीं देते, उनमें ओवरऑल अगर सेंसिटाइजेशन हम देखें बगैर किसी प्रोफाइलैक्सिस के टिल पोस्ट पार्टम पीरियड, तो वो तकरीबन 16-17% में ये हो जाती है सेंसिटाइजेशन। लेकिन जब हम इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस देते हैं तो ये सेंसिटाइजेशन कम हो के सिर्फ 2% तक रह जाती है। और यही सेंसिटाइजेशन जो कि 16-17% थी आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेंसिटाइजेशन इवेंट्स के बाद मैक्सिमम भी अगर होगी तो 2-3% होगी। तो इसलिए बहुत सारी गाइडलाइंस में अब ये है कि क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू है, बाद दफ़ा मिलते नहीं है, वहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी ये इश्यूज होते हैं कि वो थोड़ा सा लिमिट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, एंड दे डू केयर जहाँ पे बहुत उसकी पॉसिबल ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे जो मिनिमम डोज है वो उसको फिर उन्होंने उस पर टारगेट करना होता है, नॉट टू गिव एक्स्ट्रा डोजेज। तो इसलिए इसको इसकी असेसमेंट फीटो मैटरनल हेमरेज की असेसमेंट के बाद देना इज अ बेटर साइंटिफिक मेथड। लेकिन अगर हम क्रूडली देखें तो हम 1500 वाला लगा रहे होते हैं हर एक को, 300 माइक्रोग्राम वाला। और उसके बाद अब यही जो मैं 125 इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रही हूँ, दैट बी इक्विवेलेंट टू 20 माइक्रोग्राम इन अदर मेजरमेंट्स पर ml ऑफ द फीटो मैटरनल हेमरेज। ठीक है, तो ये है जो इसका है। तो इसी तरह से जैसे आपने अगर फर्ज किया 34 हफ्ते पे लगाया और 2 हफ्ते के बाद डिलीवरी हो गई उसकी, तो उसमें क्या करोगे? उसमें भी यही करोगे, फिर नहीं मैम, उसमें उसके तो दोगे। पोस्ट नेटल प्रोफाइलैक्सिस देंगे मैम। पोस्ट नेटल प्रोफाइलैक्सिस देंगे, चाहे 2 हफ्ते पहले आपने उसको 34 वीक्स पे एक लगा दी थी डोज। यस मैम, विद इन और जाहिर है 72 जब ईयर। आपने 2 डोजेस लगाई हैं तो वो तो 500 वाली लगाई हैं जो कि सिर्फ 4 ml को कवर कर रही हैं। यस और मैम। इसी उसमें भी ये तरीका है कि उसमें आप फीटो मैटरनल हेमरेज को करो, और अगर नहीं कर रहे तो कम से कम 1500 वाली आप डोज उसमें सीधी सीधी लगा देते हैं। ठीक है। मैम, हाँ जी। मैम जैसे ये था कि इन प्रीविया है इन उसमें अगर रिकरेंट एपीएच हो रहा है पेशेंट को और हम रिपीट कर रहे हैं एवरी 6 वीकली, देन हाँ, अब हम फिर 1500 देंगे या 500 देंगे उसमें हम, नहीं या फिर ये उसमें फिर डिपेंड आप करता है? देखो वही बात है ना कि 20 वीक्स के बाद ये कंडीशन हो जाती है कि डिटरमिन द फीटो मैटरनल हेमरेज, क्ले हॉर ओके। टेस्ट आप जरूर करें। उसमें वही है ना, क्योंकि 500 आप दे रहे हो, यूजुअली तो हम 500 वाली ही दे रहे होते हैं, लेकिन 500 वाली दे रहे हो जो कवर कर रही है 4 ml को। लेकिन क्या किसी खास केस में 4 ml से ज्यादा तो ब्लीड नहीं है, तो इसलिए उसको फिर उसको मेजर करना जरूरी हो जाता है, ताकि अगर वो एक उससे ज्यादा है, एक जो कि 1% में हो सकता है ऐसे,
तो Yes, madam. ऐसी सूरत में फिर आप उसको ज्यादा स्पेसिफिकली आप दे सकती हो, मेजर करके एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, Thank you, अबाउट ma'am. इसमें क्या चीज रह गई होगी? और तो इसमें मेरा ख्याल है कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलो जी, और कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं फिर। Thank you so much, madam. ओके।